السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں ہم لے کے آئے ہیں آج سیکنڈ گریڈ کا جو پیپر ہوا تھا اردو زبان کا 17 تاریخ کو 17 جولائی کو، کوڈ نمبر اس کا 35 نمبر کوڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں جلدی جلدی۔ سوال نمبر 1 ہے، پطرش بخاری کے مضمون لاہور کا جغرافیہ مذکورہ شہر کی تاریخ سڑک کس چیز کی یاد دلاتی ہے؟ تو آپشن نمبر 1 رفتہ، عظمت رفتہ کی صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 1۔ سوال نمبر 2، مولوی عبدالحق نے مضمون حالی میں ان کی کس دو تصانیف کی تالیف و ترتیب کا ذکر کیا ہے جن کا سن 1892 اور 93 ہے؟ تو آپشن نمبر 2 3 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، یادگار غالب اور حیات جاوید۔ سوال نمبر 3، مہدی افادی کے مطابق اردو کے عناصر خمسہ کون سے ہیں؟ تو آپشن نمبر 3 سر سید نذیر احمد شبلی، محمد حسین آزاد اور حالی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 4، ماہر لسانیات سے قبل بچے کو پڑھنا سکھانا کیوں ضروری ہے؟ اس کا ہو جائے گا جواب نمبر 3، پڑھنے کا عمل لکھنے کے عمل کے اکتساب میں معاون ہوتا ہے۔ آپشن نمبر 5، مہدی افادی کے درج ذیل جملے کس شخصیت کے بارے میں لکھا گیا ہے؟ تو ایک پیراگراف ہے، یہ لکھا گیا ہے الطاف حسین حالی کے بارے میں۔ آپشن نمبر 2 درست جواب۔ سوال نمبر 6، مضمون شیخ و پیر رشید احمد صدیقی کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ آپشن نمبر 4 درست جواب، خندہ۔ سوال نمبر 7، جملہ واری کے طریقہ تدریس میں کس کا نظریہ کار فرما ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 گسٹالٹ کا۔ سوال نمبر 8، ذیل میں سے غلط بیان کی نشاندہی کرنی ہے، تو آپشن نمبر 2 غلط ہے، تحلیلی طریقے میں جز سے کل کی طرف اقدام کرتے ہیں، یہ بالکل غلط جواب ہے۔ سوال نمبر 9، زبان کے مختلف عناصر کو ترتیب دینے کا ذہنی عمل پڑھنے کے کس طریقہ کار میں شامل ہے؟ آپشن نمبر 3 ترکیبی طریقہ کار میں شامل ہے۔ سوال نمبر 10، خط کشیدہ اور ٹیڑھی سیدھی لکیریں کھنچوانے کی مشق کرا کے لکھنا سکھانے کا طریقہ کس مفکر کا ہے؟ تو پستالوی کا۔ سوال نمبر 10 کا ہو جائے گا جواب نمبر 1 درست جواب۔ سوال نمبر 11، جس طریقہ تدریس میں مقرون سے مجرد معلوم سے نامعلوم کی جانب اقدام کیا جاتا ہے اسے کون سا طریقہ تدریس کہتے ہیں؟ آپشن نمبر 3 استقرائی طریقہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 12، تدریس کے تفویضی طریقے میں کس امر پر زور دیا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 2 انفرادی کام پر زور دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 13، درج ذیل بیانات میں کون سا تدریس کے بیانیہ طریقے سے متعلق درست ہے؟ آپشن نمبر 1 یہ طفل مرکوز تدریس کی ضد اور استاذ مرکوز تدریس ہے، صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 1۔ سوال نمبر 14، وہ کون سا طریقہ تدریس ہے جس میں غور و فکر، استدلال اور فیصلے کی قوتوں کی نشو و نما ہوتی ہے؟ آپشن نمبر 3 تحقیقی طریقہ تدریس۔ سوال نمبر 15، ذیل میں سے دیے گئے استخراجی طریقہ تدریس کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ آپشن نمبر 1 اساتذہ پر تکیہ کرنے کی عادت پڑتی ہے، تکیہ مینس ہوتا ہے بھروسہ، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 1۔ سوال نمبر 16، قدر مشکل نوعیت سے سوالات یعنی مڈل آرڈر کوسچن کس پر مبنی ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 1 تعلق، تفہیم اور اطلاق پر مبنی ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 17، ذیل میں سے دو بیانات درج کیے جا رہے ہیں، درست جوابات کی نشاندہی کیجیے۔ تو اے اور بی دونوں درست ہیں، آپ پڑھ لینا، آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 18، تدریس کا دائرہ کار کو تفہیم سے آگے بڑھا کر معلومات بہم پہنچانے اور معلومات کی اطلاق کو موقع فراہم کرنے والے سوالات کیا کہلاتے ہیں؟ سوال نمبر 18 کا درست جواب ہو جائے گا 4 پیش رفت پر مبنی سوالات۔ سوال نمبر 19، کس طرح کے سوالات اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا فروغ کرنے میں معاون ہوتے ہیں؟
जवाब नंबर 4, मसाइल का हल तलाश करने पर आमादा करने वाले सवालात। सवाल नंबर 20, दौराने उर्दू तदरीस उस्ताद को तख्ता स्याह पर काम करते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए? तख्ते स्याह बोलते हैं दोस्तों ब्लैक बोर्ड को, ठीक है। तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सवाल नंबर 20 का जवाब हो जाएगा 3 दुरुस्त। लिखते वक्त चाक से कोई आवाज़ ना पैदा हो। बाकी ऐसे सवाल हैं कि आरपीएससी इनको कुछ भी मान सकती है, क्योंकि ये जो है हर एक के अलग अलग अपनी समझ के मुताबिक होते हैं। ज़ेल में से कौन सी तफहीम नसर व नज़म की आखिरी मंजिल है? जवाब नंबर 4, दुरुस्त, इस्तेहसान अदब। सवाल नंबर 22, नसर की तदरीस का कौन सा हिस्सा गुरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? आखिरी तमहीदी गुफ्तगू। जवाब नंबर 3, दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 23, ज़ेल में कवायद की तदरीस के सिलसिले में 2 बयान दर्ज हैं किए जाते हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। तो ए और बी दोनों दुरुस्त हो जाएंगे, आप पढ़ के देख लेना। ऑप्शन नंबर 2 इसका दुरुस्त हो जाएगा। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वक्त ज़्यादा लगेगा, हम चाहते कम वक्त के अंदर ये वीडियो ख़त्म हो जाए। उस्ताद को तदरीसी नज़म के दौरान नज़म के तफसीली जायज़े, तनकीद और तबसरे की बुनियाद पर तलबा को क्या अक्स करना चाहिए? जवाब नंबर 2, अक्स माना दुरुस्त हो जाएगा। हो सकता है पढ़ने में कुछ तलफ़्फ़ुज़ी गलती भी हो जाए जल्दी के चक्कर में, तो आप हजरात अच्छी तरीके से वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। इस्तखराजी तरीके तदरीस के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो बयान दुरुस्त है, 4 नंबर बयान दुरुस्त है। इस तरीके में पहले उसूलों और इस्तिलाहात को ज़बानी याद करने पर जोर दिया जाता है। सवाल नंबर 26 है, फतेह किसे कहते हैं? तो ज़बर को कहते हैं। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब। आ यानी अलिफ पर को मद को जब खींच कर बोलते या पढ़ते हैं तो उस अलिफ को क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा। बिल्कुल इजी जवाब, अलिफ ममदूदा, ऑप्शन नंबर 2। 28, ज़ेल में से किस में हरूफ की आवाज़ और उसके हरकत सकनात से बहस की जाती है? तो इल्म हिज्जा से की जाती है, ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त। 29 में ज़ेल में से कौन सा हरूफ अरबी का है? तो अरबी का सा है, बाकी टा और ठा ये हिंदी के हैं, बिल्कुल ईजी है, हिंदी के हैं। और जा अपना फारसी का है। सवाल नंबर 30, ज़ेल में से किस हरूफ में हक्कारी आवाज़ है? तो ऑप्शन नंबर 1 में हक्कारी आवाज़ है। सवाल नंबर 31, ज़ेल में से कौन सा इसम 2 इसमों से मिलकर बना है? तो कफ़ीर, ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त जवाब। ज़ेल में से जिस सिफत में किसी चीज़ की अंदरूनी हालात या खुसूसियत ज़ाहिर हो, जैसे हल्का, ठोस, शरीर, चालाक वगैरह, तो क्या कहलाती है? तो सिफतें ज़ाती, क्योंकि ये चीज़ उसके ज़ात के अंदर होता है। बिल्कुल ईजी है, 10th क्लास की ग्रामर में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे तफसीर से, तो और इसके ऊपर बात करेंगे। ज़ेल में से वाव साकित होता है, यानी वाव पढ़ा नहीं जाता, तो वो है वाव मादूला कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 1। 34वां सवाल, कुछ खास जानदारों या चीज़ों की मखसूस आवाज़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसमें सौत कहते हैं। सवाल नंबर 35, जो इस मस्तर से बने उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इसमें मुश्तक कहते हैं। सवाल नंबर 36 देखते हैं, वो शहर में रहता है, कौन सा फेल है? फेल मुताद्दी है, ऑप्शन नंबर 1। वो सिफत जिसमें वजन या नाप जाहिर, बिल्कुल इजी है, जिसमें वजन नाप पैमाना हो, कुछ भी हो, तो वो कहलाती है सिफत मिक़दारी है, ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त। लफ्ज़ आबी है, ये लफ्ज़ आबी है, इसमें सिफ्त कि किस किस्म का ताल्लुक है? तो सिफ्त निस्बती है, क्योंकि या निस्बत के लिए आती है। इसके ऊपर तफसीर से बात हो चुकी है 10th क्लास के अंदर, दोबारा भी कर लेंगे जब ग्रामर कराएंगे। सवाल नंबर 39, मानों के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? तो फेल की 3 किस्में, ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 40, ज़ेल में से कौन सा मुरक्कब लफ्ज़ है जिसमें कलम अव्वल खींच तान कर दरमियानी हरूफ इल्लत को बदल कर ताबे बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 दाना व दंका। सवाल नंबर 41, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा? इस फेल की हालत बताने तो फेल मुस्तकिल मदामी है, ऑप्शन नंबर 1। 42 नंबर सवाल, इस फेल को क्या कहते हैं जिसमें ज़माना हाल में इम्कान पाया जाता है? तो इम्कान पाया जाता, बिल्कुल ईजी,
हाल एहतमाली, इम्कान कहते हैं एहतमाल को। सवाल नंबर 43, झेल में से कौन सा मुरक्कब अत्फी है? अत्फ लफ्ज वाओ ज्यादातर अत्फ के अंदर आता है, तो नरम और नाजुक, नरम और नाजुक, बिल्कुल इजी, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 44, लफ्ज धोबी का मुन्नस क्या है? मुन्नस कहते हैं स्त्रीलिंग को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धोबन। लफ्ज फिरंगन का मुन्नस क्या है? तो फिरंगन, फिरंगी कहते हैं अंग्रेज को, तो फिरंगन हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, फिरंगी का मुन्नस फिरंगन। 46 नंबर, वो लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज से किसी कदर तगय्युर से निकाला गया हो या बनाया गया, क्या कहलाता है? मुश्तक, ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त जवाब। मुरक्कब अल्फाज की आम तौर पर कितनी किस्में हैं? बिल्कुल इजी, 2 किस्में हैं, पहला दुरुस्त है। सवाल नंबर 48, बेजान अस्मा की तज़ाकिर और तानीस किस तरह की होती है? तो वबाहती होती है। 8th क्लास की ग्रामर में आपको मिल जाएगा खालिद में तफसीर के साथ, जो पुरानी गाइड आती है। सवाल नंबर 49, इसम की वो हालत जिसमें मालूम हो कि वो कोई काम करने वाला है, क्या कहलाता है? काम करने वाला फाइल, हालत फाइल ही हो जाएगी, बिल्कुल इजी। सवाल नंबर 49 का तीसरा दुरुस्त है। 50 का, झेल में से कौन सा लफ्ज अगरचे वाहिद इस्तेमाल होता है लेकिन उसमें एक से ज्यादा मफहूम होते हैं? तो बिल्कुल इजी, जोड़ा, 50 का तीसरा दुरुस्त जवाब। 51, झेल में से कौन सा लफ्ज असलन जमा है मगर वाहिद में इस्तेमाल होता है? तो बिल्कुल इजी, अखबार, ये खबर की जमा है लेकिन वाहिद में इस्तेमाल करते हैं उर्फ आम के अंदर। सुल्तान की जमा सलातीन, 10वीं क्लास में भी इसमें तफसीर से बात कर चुके हैं, बिल्कुल इजी सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था। सवाल नंबर 53, चूंकि तुम नहीं थे इसलिए मैं चला गया, ये कौन सा जुमला है? तो जुमला सबबी है, सबब बताया गया कि आप नहीं तो मैं चला गया, बिल्कुल इजी। 54 नंबर, ये लकड़ी की कुर्सी है, इजाफत बताई गई है, इजाफत है इजाफी हालत, ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त जवाब। और मुझे दर्जी मालूम होता है, इस जुमले में कौन सी सूरत मौजूद है? तो खबरी हालत, हालत बताई गई है, दर्जी की मालूम होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। मुरक्कब जुमले अगर नहवी लिहाज से जुदा गाना और बराबर की हैसियत रखते हो तो उसे, ऐसे जुमले को क्या कहते हैं? तो हम रुतबा कहते हैं। सवाल नंबर 57, वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा जबान से निकल पड़े, जुमला फजाइया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त जवाब। बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, मंदरजा बाला जुमला किस तरह का है? तो मुरक्कब मुतलक, ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त जवाब। 59, जब सख्ते से ज्यादा ठहराव की जरूरत पड़े तो उसमें कौन सी हालत इस्तेमाल करते हैं? तो वक्फ, ऑप्शन नंबर 3 वक्फ का माने होता है ठहरना। सवाल नंबर 60, जुमला मोतरिजा के पहले और आखिर में कौन सी अलामत लगाई जाती है? बिल्कुल इजी, 10th क्लास की ग्रामर में सब मिल जाएगा, कोसेन लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 61, जब कोई कौल या इक्तिबास उसी के लिहाज में नकल किया जाता है तो उस अव्वल आखिर में कौन सी अलामत लगाई जाते हैं? वावेन लगाई जाती है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 62, अर्जी नवेश को अपना नाम और पता कहाँ लिखना चाहिए? आखिरी सफ़े में बाईं जानिब, बिल्कुल दुरुस्त, ए जवाब, ए ऑप्शन ए सही है। 63 नंबर, अर्जी नवेश अर्जी लिखने के दौरान किस हिस्से में अपना मुद्दा की तफसील तहरीर करता है? बिल्कुल आसान, नफ्स मजमून के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 64, जिस के नाम दरख्वास्त लिखी जाती है उसे किस तरह मुखातब किया जाता है? बिल्कुल उसके ओहदे से, ऑप्शन नंबर 4। जैसे कि हम प्रिंसिपल साहब को लिखते हैं तो लिखते हैं ना जनाब प्रिंसिपल साहब, अब प्रिंसिपल नाम तो नहीं है, उनका ओहदा ही है, ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त जवाब। 65 नंबर, अर्जी में मकसद की वजाहत किस तरह करनी चाहिए? सब बिल्कुल कम से कम लफ्जों में करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त जवाब। मजमून की लुग़वी माना, ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त, गिरफ्त में लेना। सवाल नंबर 67, जिस मजमून में मौजू की तशरीह के बाद मुस्बत और मनफी दोनों पहलू को दलाइल के साथ पेश किया जाए उसे किस तरह का मजमून कहा जाता है? तो फिक्रिया मजमून, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 68, जिस मजमून में किसी शख्सियत के गुज़िश्ता हालात और वाक़यात को मुफस्सल अंदाज में बयान किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बयानिया मजमून, ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त जवाब।
सवाल नंबर 69, खत लिखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त मकतूब निगार कहते हैं। इसके ऊपर अपनी तफसीर से बात हो चुकी है 12th क्लास के अंदर। तहनीनी खत किसे कहते हैं? तहनीनी खत कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त जवाब, किसी की हुसूलियाबी पर मुबारकबाद देने के लिए लिखा गया खत। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त। सवाल नंबर 71, खत के अलकाब के बाद सलाम मसनून जैसे अल्फाज तहरीर किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आदाब कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त जवाब। खत के आखिरी हिस्से में यानी खात्मे में क्या कहा जाता है? तो मकतूब निगार का नाम और मकतूब इलेह से उसका बाहमी ताल्लुक रिश्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है 99%, बाकी इसके ऊपर आप स्टार लगा लेना। आंसर के आने के बाद इसका सही जवाब पता चलेगा। हमारे हिसाब से तो वही है जो मैंने बताया है। नेस्त का मुतरादिफ कहते हैं, मुतरादिफ कहते हैं पराईवाची को, तो नेस्त का हो जाएगा नाबूद। ऑप्शन नंबर 3 नेस्त तो नाबूद। जिन दो अल्फाज के माना यकसा हों क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मुतरादिफ। 3 सही जवाब। 75, लफ्ज सर्द गर्म क्या में तजाद की कौन सी किस्म है? तो दर्जाती तजाद। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 76, मुतरादिफ अल्फाज के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो दूसरा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त जवाब। दोनों मुतरादिफ अल्फाज के दरमियान हर्फ इल्लत का होना लाजमी होता है। सवाल नंबर 77, जिस फिक्रे जुमले या कौल के पीछे कोई कहानी या वाक़या लाजिम होता है क्या कहलाता है? ज़रबुल मिसल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब आ गया 78, गैर का जब मुझे ख्याल आया, मेरी छाती पे सांप लौट गए। शेर में छाती पे सांप लौट गए से क्या मुराद है? तो हसद से जलना। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त जवाब। 79, मीर अमदन भी कोई मरता है, जान है तो जहान है, मीर के शेर में मौजूद है, इसमें ज़रबुल मिसल मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त जवाब। आबेल मुझे मार का ताल्लुक किससे है? ज़रबुल मिसल से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 80 का। 81, तुमको है 8 पहर हरफो हिकायत उनसे, बाजू जानो हो उन्हें चश्मा हिमायत उनसे। इस शेर में मजाज मुरसल की कौन सी सूरत है? तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त जवाब। जुज बोलकर कुल मुराद लेना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 82, बुलंद सब्ज़ाए साहिल चढ़ा हुआ दरिया, पिए ज़ियारत मौला बड़ा हुआ दरिया, शेर में कौन सी सनत है? तो हुस्न तालील। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त जवाब। 83 नंबर, तेरे कूचे इस बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी उससे बात करना, कभी उससे बात करना, शेर में कौन सी सनत है? तो तजाद आ गया। तजाद बोलते हैं अपने विलोम को, जिसमें 2 विलोम लफ्ज आ जाएं, शब्द आ जाएं, तो इसमें रात और दिन आ चुके हैं, तो एक सनत हो जाएगी आपकी तजाद। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि 12वीं क्लास में पूछा जाता है बार बार ये सवाल, और हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग तजाद के बारे में पूछे जाते हैं सवाल। ऐसे 2 अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो एक ही मस्दर से मुश्तक हो मगर जिनमें एक मुस्बत और दूसरा मनफी हो, दोनों के तजाद हरूफ नफी से वाज़े होते हैं, इस सनत को क्या कहते हैं? तो तबाक सल्बी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त जवाब। 85, अगर तरीफैन तशबी ऐसे हो जिनका ताल्लुक सूंघने से हो तो इस तशबी क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शामी। समी सुनने से, मजाकी जबान से चखने से, और लमसी छूने से, शामी सूंघने से। 86, नज़म की किस हैयत में मिसरों के अरकान की तादाद हमारे उरूज़ी निज़ाम के मुताबिक बराबर होती है मगर काफ़ी बराबर नहीं होता? तो नज़्म मुर्रा। 11वीं क्लास में इसमें तफसीर से बात कर चुके। ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 87, आज़ाद नज़म की हैयत के किस ज़बान में वर्सन लेबर की इस्तिलाह राइज है? तो 90% जो है हमें लग रहा है फ्रांसीसी के अंदर है, लेकिन बाज़ जो है अंग्रेजी भी बता रहे हैं, तो इस पे आप स्टार लगा सकते हो। 88, कसीदे के किस हिस्से को इस्तिलाह में दो सरकश बेलों को एक जोए
में जोतने के माना लिया गया है तो गुरेज। ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त जवाब। 89 सनत रुबाई के लिए कौन सा बहर है? ऑप्शन नंबर 1 बहरे हज्ज, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ऑप्शन नंबर 90 कसीदे के किस हिस्से के अशआर कसीदे के अलावा आज़ादाना भी कहे जाने लगे और इस तरह गजल वजूद में आई? तो ऑप्शन नंबर 3 तशबीह दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 91 अपने दौर की मकबूल किताब नो तर्ज मरसा फारसी के किस दास्तान का तर्जुमा है? ऑप्शन नंबर 3 किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा है। 92 नंबर सवाल किस मसनवी में हजरत तमीम अंसारी के बतौर किरदार और उनके इससे मुतालिक वाक़यात को नज़म किया गया है? इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। इसमें या तो किस्सा बेनज़ीर हो जाएगा या फतेह नामा हो जाएगा, दोनों में से एक हो जाएगा, बाकी आप स्टार लगा लीजिए। आंसर के आने के बाद देख लेंगे। 93 मनोहर मद मालती की दास्तान इश्क किसकी मसनवी में बयान किया गया है? तो दूसरे इश्क में बयान किया गया। ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त जवाब। 94 जेल में से किस किताब को शुमार फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से कबल की दास्तान में होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त जवाब किस्सा मीर फरोज दिलबर। सवाल नंबर 95 जेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है? दुरुस्त जुमला पूछा है तो दूसरा जुमला दुरुस्त है। ज़ौक़ के सभी कसीदे बादशाहों की मदह में और खालिस दरबारी जिंदगी की पैदावार है। दूसरा सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 96 1857 से कबल के अहम शेर तस्लीम किए जाते हैं। अहम शोरा होगा यहाँ तो मिर्ज़ा मजहर और फ़गा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 97 मजमून सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ का नाम, ये अपनी 12th क्लास की किताब में भी है और ये हमारा चैप्टर चल भी रहा है। तो अल्लामा शिबली नोमानी बिल्कुल दुरुस्त जवाब और ये जवाब हमारा बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें तो कोई शक और शुबा भी नहीं है किसी किस्म का। 98 नई उर्दू नसर की बुनियाद डालने में किस रिसाले ने सबसे अहम रोल अदा किया? तो तहजीबुल अखलाक ने। ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त जवाब। 99 असगर गोंडी ने इलाहाबाद आकर किस रिसाले की अदारत के अफराइज अंजाम दिए? तो ऑप्शन नंबर 3 रिसाला हिंदुस्तानी दुरुस्त हो जाएगा। 100वां सवाल जेल में से किस शायर ने हिंदू देवमाला से अपनी गजल को एक खालिस दिलकशी बख्शी है? तो ऑप्शन नंबर 3 फराग गोरखपुरी इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। 101वां सवाल लहू पुकारता है किसका शेरी मजमुआ है? तो अली सरदार जाफरी। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त जवाब। 102 पानी बदायूं की पैदाइश पूछी है तो 1879। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त। शाद अजीमाबादी ने शायरी में जेल में से किस की शागिर्दी इख्तियार की? शाह उल्फत हुसैन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 104 मालन और जामन वालियाँ किसकी मारूफ नज़में हैं? तो जोश मली आबादी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 105 ये पूछा है अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ है, शेर है किस शेरी मजमुए में शामिल है? शेर देखते हैं पहले। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादां पर कलामे नरम और नाजुक बेअसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाले जिब्रील, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 106 दास्ता किसकी मारूफ नज़म है? तो ये इसमें थोड़ा स्टार लगा लेना, इसमें हमें कंफ्यूज है। फेज भी हो सकते हैं और नून मीम राशिद भी हो सकते हैं। सवाल नंबर 107 अरस्तु ने ड्रामे को किस की नक्काली कहा है? जिंदगी की नक्काली कहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 108वां सवाल जेल में से इंशाइया की बुनियादी खुसूसियत क्या है? तो शगुफ्ता, ज़राफ़त और आमेज़ इजहार। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल दुरुस्त। 109वां सवाल जेल में से किस सनफ़ को सफ़ात और अफसाने की दरमियानी कड़ी का है? तो रपूरताज को। ये 12th क्लास में हम अच्छी तरीके से इसको बता चुके हैं। सवाल नंबर 110 एक खत औलाद इनकलाब पसंद आर्टिस्ट लोग किसके अफसाने हैं? तो सादत हुसैन मिंटू। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल दुरुस्त जवाब इसका हो जाएगा। सवाल नंबर 111 वली की दहली में आमद किस सन में हुई? तो 1700 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल दुरुस्त जवाब। शिमाली हिंद में हिंद आरियाई ज़बानों का आगाज़ का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 1500 ईसा कबल
ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त जवाब। 113 किस माहिर लिसानियत के मुताबिक उर्दू के आगाज़ की तारीख मुसलमानों की फतह दिल्ली 1193 में की तारीख है? तो सुनीति कुमार चटर्जी दुरुस्त लग रहा है, लेकिन मसूद हुसैन भी हो सकता है, तो इसके ऊपर आप स्टार लगा सकते हैं। सवाल नंबर 114 गुरेटसन ने मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां की है? तो गुरेटसन ने 5 बोलियां बताई, ऑप्शन नंबर 4। और ये सवाल नेट में भी कई मरतबा पूछा जा चुका है, इजी था। सवाल नंबर 115 उर्दू की लिसानी इर्तिका में अब भ्रंशों के अहद को किससे ताबीर किया जाता है? सवाल नंबर 3 हिंद आर्यई ज़बानों के दूसरे और तीसरे या अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी से? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 116 हिंद आर्यई के लिसानी इर्तिका के ज़िमन में कौन सा जुमरा दुरुस्त है? सवाल नंबर 2 दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वैदिक संस्कृत, क्लासिकी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 117 देखते हैं, दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ है? तो ऑप्शन नंबर 1 शौकत सब्ज़वारी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 118 जनूबी हिंद में उर्दू के फैलने में किस तारीखी वाक़ये का रोल सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त है, मोहम्मद तुगलक का अपना पाया तक दिल्ली से देवगिरी मुंतकिल होना। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त। सवाल नंबर 119 शेख बाजन ने अपनी ज़बान हिंदी के अलावा कौन सा दूसरा नाम इस्तेमाल किया है? तो ज़बान दहलवी। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 120 शाह बरहानुद्दीन जानम अपनी ज़बान को क्या नाम देते हैं? इस पर आप स्टार लगा सकते हैं, या तो दक्कनी होगा या फिर कजरी होगा, दोनों में से एक ऑप्शन इसका होगा। बाकी का आंसर के आने के बाद पता चलेगा इंशाल्लाह। सवाल नंबर 121 मैं शौकत सब्ज़वारी और सोहेल बुखारी के ताल्लुक से इत्तिफाक करते हुए कहता हूँ कि लिसानियात नुक्ता नज़र से उर्दू हिंदी खड़ी बोली एक है, ये ज्ञानचंद जैन ने कहा है। 122 नंबर उर्दू 1027 के लगभग लाहौर में पैदा हुई, कदीम पंजाबी उसकी माँ है और कदीम खड़ी बोली सोतेली माँ है। इस पर आप स्टार लगा सकते हैं, ये हाफिज महमूद शिरानी या फिर टी ग्राहम हेली, दोनों में से एक सही जवाब। उर्दू की पैदाइश किस ने वादी सिंध से मंसूब की है? तो इसकी ट्रिक बता चुके हैं, सिंध में भी सीन आता है और सैयद में भी सीन आता है, तो सैयद सलमान नदवी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। उर्दू का ताल्लुक किस खानदान से है? उर्दू का ताल्लुक हिंद आर्यई खानदान से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 125 उर्दू ज़बान में ब्रज भाषा के लिखने का नजरिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस किताब में दिया? आब हयात। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 126 पाली भी उर्दू की तरह तमाम हिंदुस्तान में फैल चुकी थी और इन दोनों में एक ऐसी मुशाबत नजर आती है जिसकी तरफ तवज्जो करना जरूरी है, ये शौकत सब्ज़वारी का कौल है। ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 127 हाफिज महमूद शिरानी के अलावा पंजाब में उर्दू के मौलिद होने की बात है उनसे कबल किसने कही है? ये बात है, तो शेर अली खां सरखोश ने कही। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त। 128 जेल में से उर्दू का रिश्ता द्राविड़ी जबान से जोड़ा है, तो नसरुद्दीन हाशमी साहब ने जोड़ा है। 129 कदीम दक्कन के हदूद में बोली जाने वाली जबानों के ज़िमन में दुरुस्त जुमरे की निशानदेही, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और गुजराती। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 130 देखते हैं, जोल बलाग ने उर्दू ज़बान पर किस बोली के गहरे असरात की निशानदेही की है? आप इस पे स्टार लगा सकते हैं, या तो हरियाणवी होगा और या बंदीली होगा, हमें बंदीली लग रहा है। 131 रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून शेख व पीर में पुलिस वालों को किस डाकू की तलाश थी? तो मीरों की तलाश थी। ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त जवाब। 132 का जो दुरुस्त जवाब होगा वो मिसरा पूछा है, तो आप ये मिसरा पढ़ सकते हैं, मैं भी कबू किसू का सर पर गुरूर था। इसका मिसरा उला कौन सा है? तो 3 नंबर सही हो जाएगा, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 133 इसमें मिसरा पूछा है, किसू ने जिसे यह ना समझा ना देखा, जेल में से दुरुस्त मिसरा कौन सा है? दुरुस्त तीसरा मिसरा दुरुस्त है।
शब वे रोज ए दर्द दर पे हूँ उसके। सही जवाब। 34 नंबर सवाल। अजल से दुश्मनी ताउस व मार आपस में रखते हैं। दिल पुर दाग को क्यों कर है इश्क इस जुल्फ पेचा का। ताउस की मुनासिबत किस से कायम की गई है? जुल्फ पेचा। ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 135। ठीक है। विशाल यार का वादा है फरदाए क़यामत पर यकीन मुझको नहीं है गौर तक अपनी रसाई का। किसका शेर है? आतिश का शेर है। ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 136। काविश दिल करे है तकाजा के है वो उनूस। जेल में दुरुस्त मिसरा की निशानदेही। तो ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। नाखून पे कर्ज उस गिरा नीम बाज का। सवाल नंबर 137। जिक्र अगयार से हुआ मालूम हरफ खालिस्तान बुरा नहीं होता। खालिस्तान में आ जाएगा ना से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 38 नंबर। बढ़ गए तुमसे तो मिलकर और भी बढ़ गए तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियां। दुरुस्त मिसरा लगाकर शेर को मुकम्मल करना है। तो हम तो समझते थे कि अब दिल को शिकेबा कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 140 की तरफ बढ़ते हैं आगे। मैं मंजिल फना का निशान शिकस्ता हूँ तस्वीर गर्द बादो वफा हूँ मिट्टी हुई। पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ऐसी पीडीएफ ऐसी बनी है वैसे। तो ऑप्शन नंबर 2 मिर्जा गालिब दुरुस्त जवाब हो जाएगा। 140 का नज़ीर अकबर आबादी की नज़म मुफलिसी की हैत पूछी है। बिल्कुल आसान, 11वीं क्लास की किताब में। ऑप्शन नंबर 3 मुफलिसी सही जवाब। 41 नंबर सवाल। कौम की इज्तिमाई तस्वीर पर हाली ने नज़म मुसद्दस हाली के मखसूस हिस्से में जोर देते हुए कौम की नसीहत और इस्तिलाह की गरज से किस जानदार की मिसाल दी? तो चूंटियों की मिसाल दी है। सवाल नंबर 142 का हो जाएगा सहरा अनवरी। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त जवाब। सवाल पढ़ सकते हैं पूरा, वक्त की किल्लत है यहाँ। ऑप्शन नंबर 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किसान। बिल्कुल इजी सवाल। ऑप्शन नंबर 44 में नज़म एक लड़का जो अख्तर ईमान की है कब लिखी गई? तो 1954 दिसंबर के अंदर लिखी गई। सवाल नंबर 145 आप पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। ये थोड़ा जूम कर दिया आप हजरात के लिए। ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपनी मदद आप। सवाल नंबर 146 सुल्तान आसमानी का जिक्र किस मजमून में आया है? तो सच और झूठ का रज़्मनामा इसमें आया। ऑप्शन नंबर 1 में दुरुस्त जवाब। 147 मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने मजमून सच और झूठ का रज़्मनामा में मलिका सदाकत की ज़मानी के लिए जो जामा तजवीज़ किया था उसका नाम क्या था? तो मसलियत नामा दुरुस्त जवाब है। बाकी आरपीएससी इसको क्या मानते हैं देखते हैं। 148 नंबर सवाल का हो जाएगा पहला जवाब नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता। आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। सवाल नंबर 149 के अंदर खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ था मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। तो इस शेर में अल्लामा शिबली ने किस बहस के हवाले से पेश किया है? ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। मुसव्वरी और शायराना मुसव्वरी के हवाले से पेश किया। सवाल नंबर आखिरी 150 नंबर सवाल है। पतरश ने लाहौर का जोग्राफिया में लाहौर की सबसे बड़ी सनअत किसे करार दिया है? तो सबसे बड़ी सनअत रिसाला बाजी को करार दिया है। लाहौर के जोग्राफिया से जो है 2-3 सवाल पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आप हजरात को ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी आरपीएससी देखते हैं कि इनके जवाब क्या मानती है। हो सकता है कुछ सवाल थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो बाकी असल तो जो आरपीएससी की तरफ से जो की जारी होगी उसमें ही पता चलेगा। बाकी हमारी मेहनत है तो देख। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और ये भी मिलान करें कि आपके कितने सवाल दुरुस्त होते हैं।
अगर आपके तकरीबन 90 सवाल सही होते हैं, 90 सवाल बचते हैं और फर्स्ट पेपर के अंदर अगर आपके 40% सवाल दुरुस्त होते हैं तो उम्मीद है कि आपका नंबर इंशाअल्लाह इस भर्ती के अंदर आ जाएगा। और बाकी अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।